The name of the chapter is solution, and there are so many types of solution, but in our syllabus only binary solutions are there. Binary solutions are those solutions in which only two components are present. One is called solute and another is called solvent. So when we talk about solution, the most important topic which come in our mind is concentration of the solution. So the concentration of the solution is very important topic of this chapter. So what is concentration actually means? What concentration actually means? Concentration means, if you want to calculate the concentration of solute in a given solution, concentration of solute means actually you want to know about the quantity of solute in a given solution. कोई भी गिवन सोल्यूशन है उसमें कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की है. जैसे आपने सॉल्ट डाला है पानी में, उसको हमने डिसॉल्व कर दिया, तो वो सोल्यूशन बन गया. सॉल्ट सोल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट है. तो वो जो सोल्यूशन बना सॉल्ट इन वाटर, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है अगर आप जानना चाहते हो, दैट मीन्स यू वांट टू नो अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. सो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. If you want to know the concentration of solute, then that means the amount of solute present in the solution, you want to know that. But if you want to know the concentration of solvent, that means you want to know about the amount of solvent in a given solution. So concentration of the solution is very important topic of this chapter, and let us know what are the different parameters, what are the different methods which we use to find the concentration of the solution. The first method is mass percentage. Mass percentage is what? It is a method to know about the concentration of the solution. Mass percentage means how much percentage of solute is present in a given solution. So it has a formula, but before going into the formula, you need to know that suppose we have a solution. In this solution, A component and B component are present. Component means different substance. So in some books, instead of A and B, 1 or 2 is given. One component and two component is present. First component, second component is present. So I am just writing A component and B component is present in a given solution. We mix A component and B component and form a solution. So suppose in this solution the amount of A component is WA and amount of B component is WB grams. ये हमने ग्राम से लेना है. WA gram, WB gram. WA gram is the amount of A component in the solution and WB gram is the amount of B component in the solution. So we want to calculate the mass percentage. Actually WA is the mass of A and WB is the mass of B. So if you want to calculate mass percentage of A component, mass percentage of A component, if you want to calculate, then what is the formula? Mass of A divided by total mass. Total mass means WA plus WB multiplied by 100. So this is the formula for calculating mass percentage of A component. So mass percentage of A component means the mass of A component divided by total mass multiplied by 100. इसके अलावा वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है. वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट एक्सपोज्ड. तो अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी हो तो आपको यहाँ मास नहीं दिया होगा, तो हमें दो कंपोनेंट्स का क्या दिया होगा, वॉल्यूम. मान लो सपोज VA इज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A and VB is the volume of component B, then what will be the volume percentage of the component A? VA divided by VA plus VB multiplied by 100. This will be the volume percentage of component A. So ऐसे करके हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, इनका वॉल्यूम परसेंटेज, इनका मास परसेंटेज हमने कैसे कैलकुलेट करना है. एक मास बाय वॉल्यूम भी होता है. एक हमारे पास
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें मान लो आपने निकालना हो मास बाय वॉल्यूम, क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए अगर आपने निकालना है बच्चों, तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम है तो ए का हम मास लेंगे, डब्ल्यू मास ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100, तो इसको बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो डिफरेंट मेथड्स आर देयर, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, mass percentage, volume percentage and mass by volume percentage, different methods are there students to calculate concentration of the solutions। इसके बाद concentration कैलकुलेट करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड्स हमारे पास हैं वो है मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मेथड में से जो हमारी मेथड्स है उसमें आ जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी हम यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करने के लिए, मोल फ्रैक्शन हम यूज़ करते हैं बच्चों। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन है जो, इसमें इसको समझना है तो आपको एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। सपोज वी हैव ए सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन देयर आर टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। दो कंपोनेंट इसमें हमने मिक्स किए सॉल्यूशन में, कितने किए, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। जो ए कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं Na, जो बी कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स डाले हैं Nb। सो Na, Nb आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो आपने क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, x मीन मोल फ्रैक्शन। किस कंपोनेंट का करना चाहते हो, मान लो ए का कैलकुलेट करना चाहते हो। सो यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, उसका सिंबल, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का सिंबल क्या आएगा, XA। उसका फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, बस ये है फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर आपने कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, आपने कैलकुलेट करना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट XB, देन इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये आ जाएगा XB इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ऐसे करके आप बेटे मोल फ्रैक्शन इसको निकाल सकते हैं। अब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा बच्चों आपको, तो उसमें ये फॉर्मूला तो आप लगा दोगे, लेकिन आपको ये Na, Nb जो भी है ये कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, +1 में मैंने बताया है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं, मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैलकुलेट करने हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वेट इन ग्राम ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। और अगर आपने Nb कैलकुलेट करना है तो वेट इन ग्राम ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। तो ऐसे करके जो हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं तो आपको ये अपने माइंड में रखने हैं बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ए कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वेट इन ग्राम ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। वेट इन ग्राम बेटे कोई भी क्वेश्चन उसमें तकरीबन दिया होता है इतने वेट इन ग्राम। मोलर मास का क्या मतलब है, जैसे H2O है, H2O है बेटे, H2O, जैसे हमारे पास H2O है, इसका मोलर मास अगर आपने कैलकुलेट करना है Ma, तो क्या है, इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो। H कितने, 2 है, 2H का 2 मोलिकुलर मास, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। और ऑक्सीजन 1 है, इसका एटॉमिक मास कितना है बेटे, 16। टोटल मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 18। ये जो 18 आया हमारे पास, ये बच्चों ये जो 18 आया,
इसको अगर आप ग्राम में लिख दोगे तो ये बन जाएगा मोलर मास, ग्राम पर मोल। इसको अगर आप ग्रामों में लिख दो ये आ जाएगा मोलर मास, क्या बन जाएगा, ग्राम पर मोल। इसमें एक बात आपने बच्चों ध्यान रखना है कि हमेशा XA प्लस XB, अगर ये बाइनरी सोल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, तो XA प्लस XB ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। चाहे देख लो करके, XA की वैल्यू अगर पुट करो, XA क्या था, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, XB क्या था, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। अगर इनका आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉमन है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, Na प्लस NB, ये एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, Na प्लस ये क्या है NB, दोनों का अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल होकर 1। सो हमेशा XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, इट ऑलवेज इक्वल टू 1, यूनिटी के बराबर होता है। तो ये भी एक बात है। तो अगला जो हमारा मेथड है, नेक्स्ट जो बच्चों हमारा कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए जो मेथड है वो क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी उसके बाद आ जाता है मोलैलिटी। सो मोलैरिटी और मोलैलिटी दो हमारे मेथड है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो अभी आपने बेटे लिखना है ढंग से, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम है, अगर ml में है उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ लिख देना नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉट सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूशन बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मैंने पहले बताया क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स अगर सोल्यूट के फाइंड करने हैं तो उसको कैसे फाइंड करोगे, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये एक नंबर ऑफ मोल्स आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपने लिखना है। तो ये बड़ा इजीली आपका जो है न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी, व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम ही आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा मास, मास ऑफ सोल्यूशन ही आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज आएगा। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, बाकी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर है, लेकिन यहाँ ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, लेकिन नीचे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है मोलैलिटी के केस में, यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है बच्चों। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है किसी सॉल्यूशन की, कौन से सॉल्यूशन की, 5 containing 5 ग्राम ऑफ NaOH, containing 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे बच्चों, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसकी मदद से आप अंडरस्टैंड करोगे मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। सिंपल न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम NaOH, NaOH बेटे सोल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर लेना है हमेशा, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सो 5 ग्राम NaOH लिया है, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। चलो जी, अब वेट इन ग्राम दे रखा है, ये याद रखो, NaOH का वेट इन ग्राम दे रखा है। सो हमने NaOH क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट है।
लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। वॉल्यूम मैंने दे रखा है 450 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 450 ml को अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लीटर बन जाएगा। ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, अगर ग्राम को केजी में करना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। सो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो है 450 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, लीटर हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट दे रखा है, सो हमने कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसके लिए फार्मूला क्या है, वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट। कितना वेट इन ग्राम है, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 5 ग्राम जो है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट NaOH है। सोडियम का कितना वेट होता है, एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 18, तीनों को सम करोगे तो ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। तो ये 40 आ गया और ये 5 है, इनको आप अगर करोगे 5 × 8, सो 1/8 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1/8। तो बस सिंपली पुट कर दोगे आप ये वैल्यू, सो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट कर दोगे 1/8 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह क्या कर दोगे बेटे आप, 450 ml डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी कैलकुलेट करके मोलैरिटी आ जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी है। इसके बाद मैं एक बात और बता दूं आपको कि ppm भी होता है, जैसे मास परसेंटेज के साथ में होता है ppm। जैसे मैंने बताया आपको, जो मास परसेंटेज होता है, जैसे हमारे पास क्या था, मास परसेंटेज क्या था, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 था मास परसेंटेज। लेकिन अगर आपने ppm कैलकुलेट करना, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन अगर कैलकुलेट करना है आपने, एक कंसंट्रेशन का मेथड है पार्ट पर मिलियन, उसके लिए मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय ppm ऑफ, अगर आपने ए कंपोनेंट पता करना है, ppm ऑफ ए कंपोनेंट, तो वो आ जाएगा मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो ये भी एक मेथड है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ppm कैलकुलेट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 लाख से। तो ये 10⁻⁶ ये आ जाएगा ppm के लिए मेथड। सो these are the topics from the chapter solution. So in the next video we will come with new topics.